Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you class 10 CBSE first flight textbooks poem number 1. The title of the poem is Dust of Snow. This poem is composed by Robert Frost. Dust of Snow is a small poem written by famous American poet Robert Frost. The poem is set on a wintry day. In the first stanza, the poet describes a simple natural happening. The snow is falling heavily. The snowy flakes have covered the top of the tree. The poet is standing under the hemlock tree. The moment and lighting of crow on the tree make the dust of snow fall on the poet. The crow, a symbol of ill omen, and the hemlock tree associated with a person are not auspicious things. However, in the second stanza, the falling of snowflakes and the scene have a tremendous effect on the mental state and mood of the poet. So far, the day has been quite gloomy and a wastage for him, but this ordinary natural happening suddenly brings a desired change in his mood. It gladdens his heart. He realized that the falling of snowy flakes on him has saved the day. Now he is no regret as the whole of the day has no gone waste. The moments of the snowfall and their effect have saved the day. They have brought a change in his mood and gladness and uplifted his spirit. This is the introduction of the poem. Now I am going to explain you first stanza. The first stanza is the way a crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. Here all of a sudden, a crow comes from nowhere. The crow sits on a poisonous hemlock tree. A lot of snow dust had already gathered at the top of the tree. The movement of the crow brings some dust of snow down. The fine dust of the snow falls on the poet. He is standing under the hemlock tree. In the second stanza, he has given my heart a change of mood, saved some part of a day I had rued. In this stanza, poet's dejected mood suddenly changed after the snow dust. This falling of the dust of snow on him gladdens his heart. Gladdens his heart matlab make happy his heart. A change comes into his mood. His mood brightens. All of a sudden, he had given all hopes of saving all dull and cheerless day. But now, cheerfulness replaces sense of regret. The poet realizes that the whole day has gone waste. At least a part of the day has been saved and redeemed. The act of the falling of the fine dust of the snow on him has cheered his heart and mood. This poem in Hindi. So student listen carefully. सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल है अ डस्ट ऑफ स्नो, इसका मीनिंग यहाँ पे डस्ट का मीनिंग मिट्टी से नहीं लगाया गया है, ये मिट्टी नहीं है। डस्ट का मीनिंग है स्नो का छोटा सा पार्टिकल जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोस्ट किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे अमेरिकन पोएट हैं। यहाँ पे ये पोएम हमको सिंबलाइज करती है इस चीज़ के लिए कि जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, यहाँ पे इन चीज़ों को जिस चीज़ के लिए सिंबलाइज किया है एक्चुअली वो चीज़ वैसी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग हमारे ह्यूमन सोसाइटीज़ में बहुत सारे प्रिजुडिस प्रिबल्स होती हैं। प्रिजुडिस का मीनिंग होता है जो मान्यताएं, पुरानी मान्यताएं होती हैं। किसी ने बोला हाँ वो ऐसा बुरा होता है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये बहुत बुरा होता है, तो हर इंसान वही सोचने लगता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है और एकदम क्लियर चीज़ बोला है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि उनके साथ उस नेगेटिव चीज़ ने, जिसको पीपल नेगेटिव मानते हैं, उस नेगेटिव बर्ड ने, उस नेगेटिव ट्री ने उनके मूड को रिफ्रेश कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द पोएट। वो एक दिन बहुत सुबह में उनका मूड बहुत ख़राब था। पोएट घर से निकले और एक बाहर का सीन कैसा है, बहुत स्नोवी मॉर्निंग है, बहुत चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है। वो जाके गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वो जो पेड़ होता है वो हेमलॉक ट्री होता है। हेमलॉक ट्री जो होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसकी लीफ से, जिसके फ्लावर से
जिसके लीव और फ्लावर से पॉइजन बनता है और क्रिमिनल्स को पहले मौत की सजा देने के लिए जहर दिया जाता था। इसलिए हेमलॉक ट्री को नेगेटिव माना जाता है और क्रो को डेथ का सिंबल माना जाता है। तो यहाँ पे तो इन दोनों ही नेगेटिव चीजों ने पोएट के डिजेक्टेड मूड को एकदम लाइटन कर दिया है, उनको हैप्पी कर दिया, चीयरफुल बना दिया। तो कैसे मान सकते हैं कि नेगेटिव चीजें, जो लोग बोलते हैं कि ये चीज नेगेटिव है, वो एक्चुअली में नेगेटिव होती है। इसलिए पोएट ने यहाँ पे इन सुपरस्टिशंस को, इन प्रेजुडिस को न मानने की सलाह हमको दी है। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, मैं इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रही हूँ। द वे A crow shook down on me the dust of snow from hemlock tree. मैंने आपको पहले बताया कि पोएट घर से एकदम दुखी मूड में सैड होके एक बेंच पे बैठ जाते हैं, जो बेंच हेमलॉक ट्री के नीचे है। हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस वहां पे हैं। अचानक से बोले एक क्रो आता है और उसकी सारे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स को पोएट के ऊपर वो गिर जाते हैं। वो उसकी डाल को हिलाता है हेमलॉक ट्री से। सेकेंड स्टेंजा में बता रहे हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मेरे जब वो डस्ट पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरे, वो स्नो के डस्टी पार्टिकल्स गिरे, तो एकदम से उनको ठंड लगी, वो शिवर हुए और उनका मूड एकदम से चेंज हो गया। उन्होंने देखा कि मेरा पूरा मूड चेंज हो गया है, कि मैं बिलीव नहीं कर रहा हूं कि एक क्रो, एक हेमलॉक ट्री, जिसको कि हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि ये दोनों नेगेटिव चीजें, इन दोनों नेगेटिव चीजों ने मिलके मेरे मूड को फिर से फ्रेश कर दिया है। तो मैं वो देख के उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया, और मैं उसके बाद मुझे इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं रहा। रूट का मीनिंग है यहाँ पे रिग्रेट। मैंने सोचा यार इन दोनों ने मिलके मेरा बाकी का दिन बचा दिया है, अब तो मैं हैप्पीली अपना काम कर पाऊंगा, और मुझे अब मेरा जो टाइम पूरा आधे दिन का या 2 आवर्स 3 आवर्स का वेस्ट हुआ है, वो टाइम मेरा बच गया है। तो मैं इन दोनों को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और पोएट हमको यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देते हैं कि जो चीज़ कोई इंसान सोचता है कि नहीं ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा पोएट के अकॉर्डिंग ये एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस पोएम के फर्स्ट पार्ट में आपको इंग्लिश वर्जन पूरा आपका दिया है, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है, इसी के पार्ट में मैंने इसका हिंदी में आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बेटर है या फिर आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेनेशन में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।